দেখছেন ক্যালকাটা নিউজ, আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি শাহানা। আর এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে, বিহারে ফের ফিরছে এনডিএ, মোদি নীতিশ ঝড়ে কুপকাত রাহুল তেজস্বী। ফের ফিরছে এনডিএ, মোদি নীতিশ ঝড়ে কুপকাত রাহুল তেজস্বী। গত বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল আরজেডি, এবারে তৃতীয় স্থান পেতে চলেছে আরজেডি। 243 আসনের বিধানসভায় এনডিএ ম্যাজিক ফিগার ছাড়িয়ে গেছে এবং হুল ফোটাতে পারল না প্রশান্ত কিশোরের জনসুরাজ পার্টি। 6 এবং 11 নভেম্বর দুই দফায় 38টি জেলায় 243 আসনে ভোট গ্রহণ হয়েছে। আজ ফলপ্রকাশ এবং বিহারে ফের ফিরছে এনডিএ, মোদি নীতিশ ঝড়ে কুপকাত রাহুল তেজস্বী। গত বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল আরজেডি, এবারে তৃতীয় স্থান পেতে চলেছে আরজেডি। 243 আসনের বিধানসভায় এনডিএ ম্যাজিক ফিগার ছাড়িয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এবং 11 নভেম্বর দুই দফায় 38টি জেলায় 243টি আসনে ভোট গ্রহণ পর্ব হয় এবং একেবারে হাই ভোল্টেজ লড়াইয়ের মঞ্চ বিহার। এবং বিহারে আবারও ফিরছে এনডিএ, ইতিমধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। মোদি নীতিশ ঝড়ে কুপকাত রাহুল তেজস্বী। গত বিধানসভা নির্বাচনে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল আরজেডি, আর এবারে লড়াইয়ে তৃতীয় স্থানে আরজেডি। 243টি আসনের বিধানসভায় এনডিএ ম্যাজিক ফিগার ছাড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে নাম ও নিশান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এক প্রকার প্রশান্ত কিশোরের জনসুরাজ পার্টির। 6 নভেম্বর প্রথম দফায় 121টি আসনে ভোট পড়েছিল 65.08%। পাশাপাশি 11 নভেম্বর দ্বিতীয় দফায় 122টি আসনে ভোটদানের হার ছিল 68.78%। অর্থাৎ এই দুই দফায় 6 এবং 11 নভেম্বর 67.13% হারে ভোট পড়েছে, যা 1951 সালের পর সর্বোচ্চ। 38টি জেলায় বিহারের 243টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়েছে 6 এবং 11 নভেম্বর। সকাল 8টা থেকে আজ শুরু হয়েছে গণনা। প্রার্থীর সংখ্যা 2616 জন এবং বিহারে যে ফের ফিরছে এনডিএ তা এক প্রকার নিশ্চিত। আর এ বিষয়ে গিরিরাজ সিং এবং পাপ্পু যাদব তারা কি বলছেন দেখুন। कह रहा था बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, 2010 की तरह होगी। मेरे सारे बयान को देख ले, हम अपने जिला को देख रहे हैं, जिस ढंग से वोटिंग हुआ है और जिस ढंग से उत्साह था इस सरकार के प्रति। आखिर होता क्यों नहीं? एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। भले युवा ने नहीं देखा वो काल, लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है, और ये जीत उसी की। जब चल रही है जो चीज उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों। गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? चलिए। গিরিরাজ সিং এবং পাপ্পু যাদব তাদের প্রতিক্রিয়া আপনারা দেখলেন। এবং বিহারে ফের ফিরছে এনডিএ।
বিহারে ফের ফিরছে এনডিএ, মোদী নীতিশ ঝড়ে কুপকাত রাহুল তেজস্বী। গত বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল আরজেডি, এবারে তৃতীয় স্থান পেতে চলেছে আরজেডি। পবন খেরা এবং কেসি ত্যাগী তারা কি বলছেন দেখুন। शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में ज़रूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं। Well, I'm saying it directly. Indirectly, you saying? Well, I'm saying it directly. Okay. There was a book we all read as children, To Serve with Love. So this is a book written by Ganesh Gupta for Mr. Modi. आगे की रणनीति आगे चर्चा करेंगे, आज फिलहाल नतीजों पर ही फोकस करते हैं। ने चुनाव शुरू होने से पहले कहा था कि जेडीयू लगभग 80 सीटों पर चुनाव जीतेगा। नीतीश कुमार के करिश्माई नेतृत्व के चलते ये संभव हो सका है। कल तेजस्वी यादव का जो बयान आया उस पर भी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। उन्होंने तो लगातार ये दावा भी किया था कि महागठबंधन की जीत होगी, तमाम तरह की बातें भी कही जा रही थी। आरजेडी प्लस कभी कहते हैं कि हम चुनाव में बम्पर जीतेंगे, नतीजे आते देखकर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ है, ईवीएम की गड़बड़ है, एसआईआर की गड़बड़ है। एसआईआर का क्योंकि आपने जिक्र किया तो हम मणिकम टैगोर हो या उदित राज हो, नहीं, मैं इन लोगों के बयान को और वक्तव्य को ज़्यादा तरजीह नहीं देता। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना यही नतीजे हर बार देखने और सुनने को मिले। आरजेडी মোদী নীতিশ ঝড়ে কুপকাত রাহুল তেজস্বী। গত বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল, এবারে তৃতীয় স্থান পেতে চলেছে আরজেডি এবং ইতিমধ্যেই এনডিএ 243 আসনের বিধানসভায় এনডিএ ম্যাজিক ফিগার ছাড়িয়ে গেছে। আর এই মুহূর্তে সরাসরি দিল্লি থেকে সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত। ইন্দ্রাণী, বিজেপির পার্টি অফিসে সামগ্রিক এখন ঠিক কি ছবি তুলে ধরো। ইন্দ্রাণী, তোমার কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না, স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব? সঙ্গে থাকো ইন্দ্রাণী। এবং যেমনটা জানা যাচ্ছে গত বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল আরজেডি, এবারে তৃতীয় স্থান পেতে চলেছে এবং ম্যাজিক ফিগার ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গিয়েছে এনডিএ। আর সেলিব্রেশনও শুরু হয়ে গিয়েছে, ছবিটা আপনাদের দেখাচ্ছি এই মুহূর্তে। গেরুয়া আবির উঠছে এবং রীতিমতো সেলিব্রেশনে মেতেছেন কর্মী সমর্থকরা, সেই ছবি দেখাচ্ছি। 6 এবং 11 নভেম্বর দুই দফায় বিহারের 38টি জেলার 243টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়। আজ ফল প্রকাশ এবং ইতিমধ্যেই বিহারে এনডিএ যে ফের ফিরছে তা স্পষ্ট। মোদী নীতিশ ঝড়ে কুপকাত রাহুল তেজস্বী। গত 6 নভেম্বর প্রথম দফায় 121টি আসনে ভোট হয়, দ্বিতীয় দফায় 11 নভেম্বর 122টি আসনে ভোটদান হয়। 38টি জেলায় 243টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়। আরেকবার আপনাদের শোনাই প্রবীণ খন্ডেলওয়াল এবং অশোক গেহলট কি বলছেন।
बिहार चुनाव के जो रुझान वाले नतीजे आ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाते हैं कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर बड़ा भरोसा जताया है। और निश्चित रूप से हम शुरू से कह रहे थे कि बिहार में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनने जा रही है और जिस प्रकार के रुझान हैं हम 175 से अधिक का आंकड़ा पार करेंगे, इसमें अब कोई दो राय दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार का नेगेटिव नैरेटिव चलाया था कांग्रेस ने और आरजेडी ने, बिहार की जनता ने उस सारे नेगेटिव को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। बिहार में विकास एक बार फिर बहुत तेजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, एक तो जो महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए, प्रीमा फेसे मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10,000 रुपये दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। सोच सकते क्या हो सकता है, एक तो वो फैक्टर भी था और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन मुख दर्शक बना रहा, उससे क्यों नहीं रोका। 10,000 रुपये बट रहे थे चुनाव चलते हुए, इलेक्शन कमीशन रोकना चाहिए था, उसको रोका ही नहीं उन्होंने। मतलब जो राहुल गांधी और लोग सब वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट चोरी क्या होता है, ये तो होता है। प्रवीण खंडेलवाल एवं अशोक गहलोत তাদের প্রতিক্রিয়া আপনারা দেখলেন এবং হাই ভোল্টেজ লড়াইয়ের মঞ্চ হয়ে উঠেছিল বিহার। প্রশ্ন ছিল ক্ষমতা ধরে রাখবে এনডিএ নাকি মহাগঠবন্ধন কুর্সির দখল নেবে, এবং যেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বিহারে ফের ফিরছে এনডিএ। 243 আসনের বিধানসভায় এনডিএ ম্যাজিক ফিগার ছাড়িয়ে গিয়েছে। মোহন যাদব এবং কেপি মৌর্য তারা কি বলছেন দেখুন। के जो रुझान आ रहा है वास्तव में वो उत्साहवर्धक भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने एक नए प्रकार की विकास परक जो राजनीति 2014 से देखी है। एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ, जो पूर्ववर्ती समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो चल रही है और तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं उससे जनता का मन टूट चुका है और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिला करके न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है वाकई वो सबका मनोबल बढ़ाने वाले के नेतृत्व और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के विश्वास की ऐतिहासिक जीत होगी, वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। इसका परिणाम 27 में पड़ेगा सर? इसका परिणाम 26 में भी पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा और बेहतरीन परिणाम होगा। और बिहार सदा देश को संदेश देता है और बिहार देश को संदेश दे रहा है। अंतिम परिणाम आने पर हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे।